next property is all or none law. Is all or none law. So first I am going to define what is basically the all or none law is. When a stimulus when a stimulus is applied on cardiac cell with 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 whatever with whatever the strength may be the whole cardiac muscle the whole cardiac muscle give maximum response give maximum response or does not or does not give any response at all is called as all or none law is called as all as all or none law. Okay. If the stimulus is below the threshold level is below the threshold level muscle give no response right. ऐसी बात है अगर जो स्टिमुलस है वो कम थ्रेशोल्ड वाला होगा एज वी नो दैट लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एज वी नो के इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स ठीक है -85 मिलीवोल्ट उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो अगर उसको हम एक्साइट करना है हमने तो अगर स्टिमुलस जो है ना वो जो पीछे से पोटेंशियल आ रहा है जो इम्पल्स आ रही है पीछे से उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस -85 को डीपोलराइज कर सके तो इस तरह जो सेल होगा वो डीपोलराइज नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि अगर थ्रेशोल्ड से ये कम होगा तो okay. Next point is this all or none law. It is due to the sensitial arrangement of myocytes. ठीक है जो हमारा डिपार्ट है फंक्शन सेंसेशन तो ये उस वजह से होता है ऑल और नॉन लॉ। क्यों? क्योंकि अगर हर सेल के अंदर गैप जंक्शन ही ना हो ठीक है तो ऑल और नॉन लॉ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है क्योंकि एट द सेम टाइम सब सेल ने या तो रिस्पॉन्स देना या किसी भी सेल ने रिस्पॉन्स नहीं देना। दिस इज बेसिकली ऑल और नॉन लॉ एंड इट इज बिकॉज ऑफ फंक्शनल सेंसेशन और unit function of cardiac myocytes, right? So this is all or none. It is one of the property of the cardiac cells. Okay. Next property is the contractility. Next property is contractility.
It is the ability. It is the ability. The ability of cardiac cells. It is the ability of cardiac cells to shorten in length. To shorten in length after receiving a stimulus. So this ability of cardiac cell is known as cardiac contractility force. So and it is because of because of the contractile contractile proteins, right? For example, actin, myosin, troponin, tropomyosin, tropomyosin, right? Next point, contraction of cardiac cell, contraction of cardiac cell is called as systole. Systole, right? You people already know this. And relaxation of cardiac cell, relaxation of cardiac cell is diastole. Is diastole, right? Okay. So this combination of systole, which is followed by diastole, is collectively cardiac cycle. Collectively cardiac cycle, right? So today we discuss all and contractility. Contractility में क्या होता है? It is the ability of the cardiac cells to shorten in length after receiving a stimulus. ठीक है, आपको पता है ventricles receive करते हैं stimulus from nearby pacemaker cells, right? It is because of the contractile protein, contractility, contraction. ठीक है, ये force of contraction जो है, it is because of those contractile proteins. Those you people already uh, studied by me. मैंने आप लोगों को already पहले करवाया एक्टिन मायोसिन और इनकी contraction कैसे होती है, ट्रोपोमायोसिन. और फिर अगर कार्डियक सेल्स की जो contraction है, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, सिस्टोल, कार्डियक सिस्टोल. एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक सेल इज specifically known as diastole, and this whole the collection of systole which is followed by diastole is cardiac cycle. ठीक है, so the lecture is over. Okay, the next property that today we are going to discuss is refractory period. Then I will discuss Frank-Starling law. What is basically it is. Next, I will discuss. I will talk about fatigue and tetanization. वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो ऑलमोस्ट हम तकरीबन कोई 9 प्रॉपर्टीज हमने कार्डियक सेल की जो है ना वो टोटल डिस्कस की हैं, इंक्लूडिंग दीज 3. ठीक है. ओके, रिफ्रैक्टरी पीरियड अब क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको डिफाइन करने से पहले, बिफोर आई डिफाइन दिस रिफ्रैक्टरी पीरियड, फर्स्ट वी शुड नो अ बिट अबाउट द थिंग्स. वो थिंग्स क्या है, वो चीज़ें क्या है. सोडियम चैनल्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन करनी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने याद रखना, ये आगे भी आएगा सेकेंड ईयर में भी. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. अच्छा, जो सोडियम चैनल्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट सोडियम चैनल जो कि हमने डिस्कस किए थे कि जब वेंट्रिकुलर सेल्स में जब
-85 से थ्रेशोल्ड ऊपर की तरफ जाता है, तो देयर इज द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्हीं सोडियम चैनल्स की बात है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ। तो ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना, जब ये ऑपरेट करते हैं, व्हेन दी सोडियम चैनल्स आर ऑपरेटिंग, दीज चैनल्स अंडरगो सम स्टेट्स और सम कॉन्फर्मेशन, सम कॉन्फर्मेशन। फॉर एग्जांपल किस तरह कि आपको पता है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये फेज 4 है ना, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है कि ये जो सोडियम चैनल होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट, ये इस स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सोडियम चैनल मैं बनाने लगा हूँ, ये एक सोडियम चैनल मैंने बनाया। अच्छा, तो ये जो चैनल्स होते हैं ना, ये चैनल्स, इसके ऊपर ना गेट्स लगे होते हैं दोनों साइडों पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में गेट्स। फॉर एग्जांपल एक हम बोलते हैं एम गेट, एक को क्या बोलते हैं, एम गेट। ये देखो मैंने एम शेप एक गेट बना दी इसके बाहर वाली साइड पे, ठीक है, ओके। फिर अंदर वाले साइड पे एक गेट होता है, फिर क्या होता है, अंदर वाले साइड पे एक गेट होता है जिसको हम कहते हैं एच गेट, जिसको क्या कहते हैं, एच गेट, ठीक है। ये एच गेट है। अच्छा, अब ये जो स्टेट है सोडियम चैनल की, ये जो स्टेट है सोडियम चैनल की, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट और क्लोज स्टेट, रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट और क्लोज स्टेट, ठीक है। ये पहली स्टेज है। फिर दूसरी स्टेज की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बोथ बोथ गेट्स, बोथ गेट्स आर ओपन। ये देखो, एम गेट भी ओपन है एंड दिस एच गेट इज आल्सो ओपन। अच्छा, एंड दिस स्टेट इज नोन एज एक्टिव स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेट और ओपन, ओपन स्टेट। इसमें जो है ना चैनल ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेट में क्या हो रहा होता है कि इस स्टेट में आयंस की मूवमेंट हो रही होती है, यहाँ से आयंस की मूवमेंट क्या हो रही है। नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज लाइक दिस। इसमें क्या होता है, योर एम गेट इज ओपन, और एम गेट इज ओपन, बट योर एच गेट इज क्लोज्ड, योर एच गेट इज क्लोज्ड, लाइक दिस, राइट। एंड दिस स्टेट इज known as inactive state, inactive state, राइट। अच्छा, अब ये बताने का इस यहाँ पे क्या जरूरत है, लिसन एंड रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू जस्ट स्पीक इट आउट। क्या, कि ये जो एक्टिव स्टेट है और ये जो इनएक्टिव स्टेट है, ये दोनों स्टेट्स, इनएक्टिव स्टेट एंड एक्टिव स्टेट, इसमें जब सोडियम चैनल्स होते हैं अपने इन फेजेस में, तो इनको हम दोबारा ओपन नहीं कर सकते, इनको, these two states of sodium channels cannot be stimulated, इन दो स्टेट्स में आप इनको स्टिमुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लिसन, ये जो फेज 4 है, इसके अंदर जो है ना वो सोडियम चैनल वो रेस्टिंग स्टेट में, किस स्टेट में, रेस्टिंग और क्लोज स्टेट, रेस्टिंग स्टेट, इधर रेस्टिंग स्टेट में। और फेज 0, ठीक है, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है, फेज 2 के एंड तक, ठीक है, ये इसमें किस में रहते हैं, ओपन और इनएक्टिव स्टेट में रहती है, फेज 0, फेज 1, फेज 2 के एंड तक, ठीक है।
और फेज, अच्छा, जब फेज वन खत्म, सॉरी, जब फेज वन स्टार्ट होता है या फेज जीरो खत्म होता है, लिसन एंड रिमेंबर, व्हेन द फेज जीरो इज गोइंग टू बी एंड एंड फेज वन इज गोइंग टू बी स्टार्ट, एट द एंड ऑफ फेज जीरो द सोडियम चैनल आर इन एक्टिव स्टेट और ओपन, यहाँ तक ओपन है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे फेज वन स्टार्ट होता है तो ये इन एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, ये किधर चले जाते हैं, इन एक्टिव स्टेट के अंदर, इधर भी। और फेज टू के अंदर भी किस चीज में, इन एक्टिव स्टेट में। और जब ये फेज थ्री स्टार्ट होता है ना, तो फिर ये इन एक्टिव स्टेट वाले सोडियम चैनल है, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा क्लोज और रेस्टिंग स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोज और रेस्टिंग स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वाली स्टेट है ओपन स्टेट, दिस वन, राइट। अच्छा, अब एक और बात कि ये जो क्लोज और रेस्टिंग स्टेट है, इस स्टेट के अंदर आप सोडियम चैनल्स को दोबारा स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैन बी स्टिमुलेटेड। अच्छा, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ कैन बी स्टिमुलेटेड, इसका ये मतलब है कि इस फेज के अंदर इनको जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोबारा ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोबारा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो फेज जीरो के, सॉरी, फेज फोर के अंदर क्या होता है, क्लोज स्टेट में होते हैं, जैसे इनको पोटेंशियल मिलता है ओपन हो जाते हैं। लेकिन थे किस स्टेट में, क्लोज में, इसका मतलब इसमें आप इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। फिर जब ये फेज जीरो के अंदर चले जाएं, जब जो कि एक्टिव स्टेट है या ओपन स्टेट है, फिर जब ये फेज वन में इन एक्टिव स्टेट में चले जाएं या फेज टू में ये क्या हो जाए, इन एक्टिव स्टेट में हो, तो इन दिस थ्री फेजेस यू कैन नॉट रीओपन दिस सोडियम चैनल्स व्हाइल द सोडियम चैनल्स आर इन एक्टिव और इन एक्टिव स्टेट। अच्छा, जैसे फेज थ्री स्टार्ट होता है, एज द फेज थ्री इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ये इन एक्टिव स्टेट्स में, ये आहिस्ता आहिस्ता अब क्लोज स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है अब अगेन दोबारा जो है ना, इनको जैसे ये पोटेंशियल -85 तक पहुंचेगा या फेज फोर में दोबारा पहुंचेगा, तो ये सारे सोडियम चैनल किस फेज में चले जाएंगे, क्लोज और रेस्टिंग स्टेट में, इनको दोबारा फिर हम एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अभी कहानी सोडियम चैनल की स्टेट्स के बारे में। अब आ जाओ रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी टाइम। इट इज द स्टेट, इट इज इट इज द स्टेट और पीरियड, इट इज द स्टेट और पीरियड in which cardiac muscle cardiac muscle do not show do not show any response to stimulus। ये वो पीरियड होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिसमें जो आपका कार्डियक सेल होता है वो किसी भी पोटेंशियल को रिस्पॉन्ड नहीं करता। और वो कौन सा टाइम होता है, ये देखो, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये देखो, दिस इज इफेक्टिव refractory period। So this refractory period or effective refractory period is further subdivided into absolute refractory period, क्या है, absolute refractory period, और एक है relative refractory period। अब absolute क्या होता है refractory, ये देखो गौर से सुनो, this is because of the sodium channels। absolute क्या होता है, मसल, मसल मतलब कार्डिक मसल, do not show do not show any response any response whatever whatever the strength, yeah, strength of stimulus में भी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है ना, इसमें किसी भी स्टिमुलस को जो है ना, वो कार्डियक मसल जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, और इसमें ये कौन से फेज होते हैं, इसमें कौन कौन से फेजेज आते हैं, फेज जीरो, फेज जीरो आता है इसमें, इसमें फेज वन आता है और फेज टू आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिलेटिव क्या है, रिलेटिव ये देखो फेज थ्री, ये पूरा फेज एक, फेज फोर से लेके दूसरे फेज फोर तक,
एक फेज फोर से लेके दूसरे फेज फोर तक सारा इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है। फिर हम रिफ्रैक्टिव पीरियड को दो में डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, इसमें कोई भी स्टिमुलस किसी भी स्टिमुलस से जो है ना वो सेल को एक्साइट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये फेज थ्री के बाद इसमें स्टार्ट, इसमें अब देखो फेज थ्री के अंदर क्या होता है, जो इनएक्टिव स्टेट वाले सोडियम चैनल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट में। तो जैसे रेस्टिंग स्टेट में सोडियम चैनल्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम इनको ऑक्साइड कर सकते हैं। तो इसमें अब हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है, ठीक है। ये जो मैंने रेड से शो किया पीरियड इतना, दैट इज relative, that is relative refractory period, ये relative refractory period। और इसके अंदर जब आप पहले वाले स्टिमुलस से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दोगे, क्यों, क्योंकि इस स्टेट पे अभी तक सारे वाले जो इनएक्टिव स्टेट वाले सोडियम चैनल थे वो अभी तक रेस्टिंग स्टेट के अंदर नहीं आए, अभी तक वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे ये -85 वाले पोटेंशियल पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा अपनी एक्टिव स्टेट में, सॉरी क्लोज स्टेट में चले जाएंगे, रेस्टिंग स्टेट में चले जाएंगे, तो हम दोबारा इनको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन जब फेज थ्री के अंदर होंगे तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, क्लोज स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में। तो इसलिए इसके अंदर चांसेस होते हैं कि वी कैन स्टिमुलेट दिस कार्डियक मसल, बट इन केस ऑफ absolute refractory period in which the sodium channels are basically in active state or open or inactive state, you cannot stimulate these cardiac cells again unless until the one effective refractory period is going to be completed। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये होता है रिलेटिव। अब रिलेटिव अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसका जो टाइम होता है वो होता है तकरीबन 250 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। अच्छा, और रिलेटिव इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, इट इज द पीरियड, इट इज पीरियड इन विच, इन विच इट इज द पीरियड इन विच, इन विच muscle shows response if if stimulus is maximum, if stimulus is maximum और ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रीवियस स्टिमुलस, जो जिससे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ था उससे अगर स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टिमुलस देंगे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे अब उन वाले सोडियम चैनल्स को भी ओपन करना है जो अभी इनएक्टिव स्टेट में है, तो इसलिए आपको बड़ा ज्यादा स्टिमुलस चाहिए, बड़े वाले स्ट्रेंथ चाहिए आपको, ठीक है। ये बड़े वाले पोटेंशियल चाहिए, या जो नर इम्पल्स स्पीशीज से आ रही है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप उन सोडियम चैनल्स को कोप कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं जो अभी तक रेस्ट या क्लोज स्टेट में नहीं आया फ्रॉम इन एक्टिव स्टेट। इसलिए यहाँ पे स्टिमुलस बड़े चाहिए होते हैं। और ये कौन सी स्टेट होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड किस फेज में होता है, तीसरे वाले फेज, ठीक है। पहले वाले तीनों फेज 0 1 एंड 2 दीज आर एब्सोल्यूट इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड इट्स टाइप्स। और ये जो रिलेटिव इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसका जो टाइम होता है वो होता है तकरीबन 0.05 ठीक है। ये सेकंड में मैंने बताया, ऊपर वाला मिली सेकंड में बताया। अब उसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो वो बन जाएगा 0.25 सेकंड, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द रिफ्लेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू पीपल हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ये सेकंड में भी है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ओके, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ states that heart has heart muscles, heart muscles has intrinsic ability, heart muscle has intrinsic ability to adopt, to adapt to
adapt itself to changing loads, to changing loads of of inflowing blood। क्या मतलब है इसका? अभी ये मैं बताता हूँ, आप लोग समझाता हूँ। कि जितना ज्यादा फिल होगा ब्लड एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर, उतना ज्यादा जो हार्ट है ना वो ज्यादा स्ट्रेच होगा। जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है जितना ब्लड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में ज्यादा होगा उतना अब हार्ट ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो उसके वेंट्रिकल उतने ज्यादा फैलेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ब्लड को अकोमोडेट करना है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि जितना ज्यादा हार्ट ज्यादा एक्सपैंड होता है वाइल डायस्टोल व्हेन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज गोइंग टू बी फिल्ड, जब वो भर रहा होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, ये जब दिल की फीलिंग हो रही होती है ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा दिल उतना ज्यादा फिर पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जिस तरह आपके पास कोई रबड़ हो, ठीक है, ये कोई स्ट्रेचेबल चीज हो, आप उसको जितना ज्यादा खींचेंगे वो उस उसी फोर्स से वो दोबारा ज्यादा क्या करेगी, एक्शन शो करेगी। तो इसी तरह हार्ट भी इसी फिनोमेना के मुताबिक वो कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द हार्ट मसल हैज इंटरनल एबिलिटी टू अडैप्ट इटसेल्फ। क्या मतलब है? जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा और उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा क्या होगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जितना एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें हम आगे लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ventricle varies with एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतने वेंट्रिकल्स अपने आप को ज्यादा पावरफुल तरीके से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे बाद में सिस्टोल के अंदर, ठीक है। सो एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, अल्टीमेटली मायोकार्डियम स्ट्रेच स्ट्रेच मोर, causing causing the greater contraction, ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेंच स्टॉलिंग लॉ, कि जितने ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आपका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट अल्टीमेटली इंक्रीजेज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेच डेवलप होता है और उतना ज्यादा आपका क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फटीग एंड टेटनाइजेशन, फटीग टेटनाइजेशन। आप लोगों ने एक टेटनस टाइप की बीमारी सुनी होती है पहले, जिसमें क्या होता है, मसल की ट्विचिंग होती है, कि कैल्शियम आयंस के इम्बैलेंस की वजह से मसल की क्या होती है, ट्विचिंग। तो आप लोगों ने याद रखना है जो हमारे कार्डियक सेल्स हैं, ये देखो, ये इसी इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से, या ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसी वजह से हमारे आपका दिल जो है वो कभी थकता नहीं, कभी फटीग नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके जो अदर जो मसल होते हैं जैसे स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल जो है, उनके अंदर इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला चक्कर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सोडियम चैनल होते हैं वो इन स्टेजेस के अंदर से नहीं गुजरते ना, वो इनएक्टिव स्टेट में जाते हैं, ठीक है, और इनएक्टिव स्टेट में होने जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा उनको हम रीएक्साइट कर सकते हैं। तो आपको पता है ना, जब आप बहुत ज्यादा विग्रेस एक्टिविटी कर लें तो आपके स्केलेटल मसल थक जाते हैं, फटीग में चले जाते हैं, आप उठने के काबिल भी नहीं रहते। लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि आपके दिल के मसल थक के उन्होंने काम छोड़ दिया हो। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया हुआ, किस चीज का, कि उसको हर टाइम अपना जो है ना वो टाइम पूरा करना इफेक्टिव इफेक्टिव। अगर आपके अंदर या ये जो इनएक्टिव स्टेट्स में सोडियम चैनल हैं आप लोगों के, अगर ये इनएक्टिव स्टेट में ना जाते और कोई छोटा मोटा स्टिमुलस आता और इन सेल्स को दोबारा से एक्साइट कर देता, तो आपका जो हार्ट सेल होते हैं वो कभी फेज 4 में जाते ही ना, और जब तक फेज 4 में ना जाते तो ये फौरन से क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। हर टाइम कैल्शियम का लेवल इनके अंदर रहता है और इसके अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा हो जाता है, कि इसका ना तो डायस्टोल पूरा होता ना सिस्टोल पूरा होता। क्योंकि आप लोग देख रहे हो फेज 4 के अंदर क्या होगा, डायस्टोल पूरा होगा, और जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल बनता है, इसके अंदर आपका सिस्टोल होता है। तो इसी वजह से आपके जो कार्डियक सेल होते हैं वो थकते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर सोडियम चैनल की स्टेट्स हैं उसकी मदद से इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जब सोडियम चैनल इनएक्टिव और ओपन स्टेट में होते हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा एक्साइट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ अदर सेल लाइक स्मूथ और स्केलेटल, उनमें दोबारा भी उनको एक्साइट किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो फ्रीड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहता है, द कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी
fatigued, and tetanized, and tetanized because of refractory period, because of refractory period। लेकिन कुछ डिजीज, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की हमने बात की है, लेकिन अगर कुछ डिजीज स्टेट में हो तो ये आपका जो एक्शन ड्यूरेशन होता है या एफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ये जो है ना एक्साइड हो जाता है, उसमें फिर हमें डिजीज हो जाती है, इसको arrhythmias कहते हैं। So we have done with the properties of cardiac muscle, in which basically we talk about almost 9 properties. First one was functional sensation, second one was excitability, the third one was autorhythmicity, the fourth one was conductivity, the fifth one was all or none law, sixth one was contractility, the seventh one is effective refractory period or refractory period, it's very important. And the next is Frank Starling law. As the more stretch is produced in the cardiac myocytes, greater will be the force of contraction and greater will be the stroke volume. जितना ज्यादा आप किसी चीज स्ट्रेचेबल चीज को खाएंगे उतना ज्यादा पावरफुल किस्म से आपको रिस्पॉन्स देती है, तो ये भी उसी तरह का है, लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो नेक्स्ट इज फटीग एंड टाइटनाइजेशन। दिस कैन नॉट बी हैपन, कार्डियक मसल कैन नॉट बी मोर एंड री, or you can say pre-re-excited, क्या pre-re-excited, because of this protective refractory period, and this refractory period is because of these the states of these sodium channels. So the lecture is over. If you will have any question, you can ask. Then the lecture is over. Now we have done with the properties of the cardiac muscles.